No, I think this is a great tragedy, and like all, our heart really goes out to the bereaved family. And I think the priority has to be to save as many lives as possible. And I think at this point in time, one needs a lot of doctors, plenty of medicines, and unless and until those things are there, it becomes a little uh, difficult, but it certainly is a great tragedy. Uh, yes, so our heart really goes out to the bereaved family. This is not the time for politics. You nobody can do politics over dead bodies. And please understand, it could be you, it could be me, it could be anybody, it could be our relations. At the end of the day, it's human lives. And of course, one has to ensure that such things don't happen. And I can tell you, being a railway mantri earlier, railway is one of the best organization in the world. They're very efficient. This was also one of the freak in the sense that derailed coaches were rammed into by another passenger train. I recall, if I'm not mistaken, sometimes in 2010, in the month of May, near Kharagpur, I think it was Gitanjali which got derailed and which was rammed into by a goods train, where almost about 200 people died, unfortunately. And that time it was sabotage. So, in such accidents, I would not rule out anything. Anything is possible, and that only the high level inquiry commission, which has been appointed by the government, and the Railway Safety Commission can look into it and tell us what has happened to ensure that these kind of things don't happen. So don't rule out anything. When I said anything, I mean anything. Because in 2010, like I said, it was a sabotage. So let's wait and see, but the priority is to save life. And I think we all are together. And I'm sure in opposition also would not want to do politics on this, because there's no place for politics. Yeah, we are the best people. As far as when it comes to rescue, when it comes to saving lives, I think we are one of the best in the world, and I have no doubt that everybody is putting their best foot forward. It's unfortunate that the accident took place, and like I said, this was also a freak that had the other passenger train not rammed into this passenger Coromandel, things would have perhaps been lesser damaged in terms of lives. So here we are talking about 3 trains got involved. So obviously the casualty is massive. But even if one person is dead, is dead. So our heart really goes out to the bereaved family. A high level. Yes, that's what I meant. So- A high-level committee and also the Railway Safety Commission, all of them would get involved in it. And I'm sure, like I said, the railway is one of the best organization, and this government is doing its best to minimize the casualty. Uh, but the coach. I think it's too early. I don't think so. Anybody would do accident, by choice. Accidents are accidents. But I said that no angle should be left out. In 2010 May, it was sabotage. So I'm not suggesting that it would be sabotage, but no angle should be left out. No angle should be, because we have a history of it in 2010, where almost about 200 people unfortunately died. So, what is the reason? That is a long drawn process. Inquiry commission will look into it, and the government has ordered immediately. So, all those things will come to light. That's why it's called accident, right? The most efficient people in the world, the most efficient organization could have such an accident. Recently, accident took place in Paris, if I'm not mistaken.
So I think let's not get into any kind of blame game. But it's a tragedy, and we should treat it as a tragedy, and we should treat this as an accident and try to ensure that such accidents don't take place. And I'm sure the railways and the government will do its very best. Obviously, with the lines, one has to, with such accidents, you have got to check the entire stretch of the railway track. God knows if there's something else lying on the railway track. So I don't think so anybody should be in a hurry. जान है तो जान है ना, तो थोड़ा डिले होगा, इनकन्वीनियंस होगा, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे. It's a very tragic time, and I think it's sad. It's very sad. That's all I can tell you. Do you want to do some appeal? No appealing. I can only appeal to doctors around. Because no hospital will have so many doctors and so much of medication. So doctors in and around that area, subject to order and subject to what is required by the organizations and the government and the railways, they must come forward, the volunteers. And one thing has to be taken into consideration, that we should be disciplined. I mean, I can understand the anger, but that anger should not turn into chaos where it will only affect the rescue and the treatment of the people who are injured. So I think we should avoid any kind of anger at this moment and let things go in a orderly manner. And I can tell you, I know this government, it will do its very best. Last question. BJP will, I would not get into politics of it. This can happen in any regime, in any government, in any ministry, in anywhere in the world. So I would definitely avoid any kind of politics on human tragedy. This is not the time really to even think about anything of that sort. Let the person work. The minister has reached on the spot at the earliest possible. The Odisha chief minister is there, and let's understand that we need to save lives. That's the priority. All these things are in the realm of politics. That needs to be avoided at any cost. क्या कहेंगे उड़ीसा मैटर पे? नहीं, देखिए, ये वक्त है कि जो परिवार हैं जिनके लोग मरे हैं उनके साथ हमें खड़ा रहना है, और ये समय है कि सब चीज़ ऑर्डरली हो. मंत्री महोदय खुद पहुंच गए हैं वहाँ. सरकार के पास जो भी है रेस्क्यू ऑपरेशन के ऑर्गेनाइजेशन सब वहाँ पहुंच गए हैं, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो. तो पूरे तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार को करना चाहिए और वो नहीं कर रही है. तो ये बहुत ही दुखद घटना है. तो बस यही कहेंगे कि हम लोग सब दुखी हैं. अजनबी वैष्णव, हाँ, लॉट ऑफ बीजेपी प्रोमिनेंट लीडर आते हैं. अब अजनबी वैष्णव कह रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब वहाँ पर अवेलेबल है, हम लोग लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं, कमेटी का गठन भी किया गया है. इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, कमेटी का तो गठन होना ही है, और रेलवे सेफ्टी कमीशन है, और मैं रेल मंत्री रह चुका हूँ और ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया में यदि कोई ऐसा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे है. रेलवे के हर एक व्यक्ति जो रेल में काम करते हैं, हर एक व्यक्ति डेडिकेटेड है, होनहार है, और ये जो हादसा हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, और ये एक फ्रीक कहा जा सकता है. जैसे मुझे याद आता है 2010 में मई का महीना था, गीतांजलि ट्रेन डीरेल हो गई थी और सामने से एक बहुत बड़ी गुड्स ट्रेन फुली लोडेड आ रही थी. तो उस समय करीब 200 के करीब 180 या वैसे यात्रियों की मृत्यु हुई थी. और उस समय इंक्वायरी कमीशन ने कहा था कि ये सैबोटेज है. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं करना चाहिए. और ये फ्रीक इसलिए था कि इसमें 3 ट्रेनें एक साथ जुड़ी थी.
और मतलब यदि मान लीजिए वो गुड्स ट्रेन, वो दूसरी पैसेंजर ट्रेन नहीं आती ट्रैक पर, तो शायद बहुत सारी ज़िंदगी बच सकती थी, मगर ये फ्री था। मगर असली बात क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो इंक्वायरी कमीशन ही कह सकता है। अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने भी इंजर्ड है, जितने भी अस्पताल में हैं, सबको अच्छी चिकित्सा मिले, और मैं समझता हूँ अच्छी चिकित्सा मिल ही रही होगी, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बचा सके वो बचाए। तो इसमें विराट देखिए, आप चिता के साथ राजनीति नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है, हमारा भाई, हमारी बहन, हम खुद हो सकते थे। तो ये हमें ज़रूर देखना है कि ऐसे हादसे ना हो, और ऐसे हादसे बहुत कम हुए हैं। पिछले 9 साल में देखा जाए तो ऐसे हादसे बहुत ही कम हुए हैं, और मगर एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है ना, तो इसके साथ राजनीति का खेल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऑपोजिशन भी ये समझेगी। वैष्णव जी एक होनहार मंत्री हैं, वो खुद मतलब जल्द से जल्द स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, और जितनी भी सहायता हो सकती है वो हो रही है, और दुखद घटना है, बहुत दुखी घटना है। लेकिन देखिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है रेलवे का, अपने अनुभव से आप बताएंगे। देखिए, ये वक्त वो नहीं है कि हम आप या कोई ऐसा होनहार है कि तुरंत बतला दे ये गलती है। वो तो इंक्वायरी कमेटी जो हाई लेवल बिठाई है, और हमारे प्रधानमंत्री खुद बहुत दुखी है, वो हाई लेवल कमेटी बिठाएंगे और हकीकत सामने आएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाई लेवल कमेटी को कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे 2010 में खड़गपुर के पास सबोटाज था, 10 महीने रेल नहीं चली थी उस लाइन में, रात को रेल चल ही नहीं रही थी, तो वो भी एक वक्त था। तो कोई भी ऐसा एंगल हो, वो इंक्वायरी कमीशन को रूल आउट नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जितने मरीज़ हैं, जितनी जान बचा सके उतनी जान बचाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि चिता पर राजनीति नहीं हो सकती। वो होगी तो कैओस होगा, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो प्रेशर पे आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज, दवाइयाँ उस इलाके में मिल सकती है, उसको मिलना चाहिए, खास करके डॉक्टर, क्योंकि कोई अस्पताल इतने सारे मरीज़ के लिए जो यात्री घायल हुए हैं इक्विप नहीं होती। और तीसरी बात है, इंक्वायरी कमीशन की वेट करनी चाहिए, और उनको कोई भी एंगल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2010 में जो हुआ वो सबोटाज हुआ, तो मैं समझता हूँ कोई भी एंगल, और मुझे नहीं लगता वो नज़रअंदाज कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबोटाज था, मगर कोई भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेलवे बहुत ही सक्षम है अपने आप में, और मेरे तजुर्बे में दुनिया में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने इंडियन रेलवे से बढ़कर। तो सभी लगे हुए हैं, सभी जगह से रेलवे के लोग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पूरी सरकार की मशीनरी आज की तारीख में अभी वहीं लगी हुई है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और हमारी संवेदना, दुखी हैं सब। आप ये कहना, बीजेपी के रूल में आपकी जो रेलवे है वो काफ़ी बेहतरीन है पुरानी गवर्नमेंट के मुकाबले। नहीं, हम वो सब कंपेयर करने से राजनीति हो जाएगी, तो हम उस राजनीति में जाएंगे नहीं, मगर ये कहेंगे कि सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है। और मैं हमेशा जब बातचीत होती है, टेलीविज़न कैमरा भी जब नहीं होता है, तो हम कहते रहते हैं कि 9 साल में मतलब एक्सीडेंट बहुत मतलब कंट्रोल में आए। अब 100% कंट्रोल में तो कुछ नहीं आ सकता है, मगर काफ़ी तादाद में एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, और रेलवे काफ़ी एफिशिएंट हुई है, क्योंकि प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स। तो ये एक समय बुरा ट्रेजेडी है, इसको किसी तरह से हमें पार करना है,
और जिसके घर में मृत्यु हुई है उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं, मगर हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनकी ट्रेजेडी में शामिल हैं हम। आप कह रहे हैं कि 10 महीने तक रेलवे नहीं चली थी रात को, क्योंकि डर था सैबोटेज का। वो समय नहीं है अभी, क्योंकि उस समय अल्ट्रा लेफ्ट का कुछ चल रहा था। अभी देश में उस प्रकार की चिंता नहीं है, मगर कोई एंगल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सब चीज़ को देखनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि 42 के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ये 2010 को नहीं है, कैसे माने? 2000 इसमें रूट डाइवर्ट करने की एक ही बात होती है कि भाई पूरा ट्रैक को अब पूरा इंस्पेक्शन होता ही रहता है, मगर 10 बार करना पड़ेगा और वहाँ मलबा हटाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप यदि टेलीविज़न के चित्र में देखें तो ऐसा लगता है भूकंप आया है। ये चित्र भूकंप के सिवाय हो ही नहीं। मैं नहीं कहता हूँ भूकंप आया, मतलब ये चित्र ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 ट्रेन शामिल हैं। एक डीरेल हुई, दूसरी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन आके उसको टकराई, वो डब्बा फिर दूसरे गुड्स ट्रेन खड़ी थी उसमें टकराए। मतलब ये तो फ्रीक है ना, ये फ्रीक एक्सीडेंट, ये पूरी दुनिया के एक्सीडेंट के रिकॉर्ड में ये वन ऑफ द फ्रीक एक्सीडेंट कहा जा सकता है। पर एक्सीडेंट है और आगे ये देखना है कि ऐसा एक्सीडेंट ना हो।